So, welcome students. This video or this lecture is being made especially for the students of MSc first semester physics in SSJ University Almora. So, today I'm going to discuss the fourth paper, General Theory of Relativity and Cosmology. So, I'm going to start with the syllabus, and because this is the first class, and slowly we will discuss the major things, major topics, and in the subsequent lectures we will try to cover them. So as you can see on your screen, the first unit is Foundations of General Relativity, and second is Einstein's field equation and gravitational dynamics. Third is gravitational radiation, and fourth is cosmology. Okay, so we have 4 units total, and I'm going to cover third and fourth units, and rest of the 2 units will be taken care by other faculty. So let us first review some basics about relativity. Means a special theory of relativity. You know, there are 2 types of theories of relativity given by Einstein. First is special theory of relativity, and second is general theory of relativity. So you might have gone through the special theory of relativity in BSc, but before starting general theory of relativity, let us first recall all the concepts of special relativity. So in special theory of relativity, what we the major things, the important points are: first thing is frame of reference. Frame of reference means any type of coordinate system used to take measurements about any motion, any event. Okay, and what Einstein said that there is no absolute motion. All the motion is relative. Okay, so it depends on the frame of reference, on which type of frame of reference you are opting for the measurements. And there are 2 types of frame of reference: inertial and non-inertial. So inertial frame of reference is a frame of reference which is either at rest or moving with a constant speed. Or you can also say that a reference frame in which an acceleration is the result of a force. We will discuss it more clearly when we will start discussing general theory of relativity and gravity. Okay, then what are the examples of non-inertial frame of reference? What is the non-inertial? Non-inertial means any type of frame of reference which is moving but not at a constant speed, but its speed is changing, it's varying, so there is an acceleration. So you can say the accelerated frame of references are called non-inertial frame of references. So in special theory of relativity, we only considered, Einstein only covered the inertial frame of references, and accelerated or non-inertial frame of references were discussed in general theory of relativity. And there were 2 postulates of special theory of relativity. First is the laws of physics are the same in any inertial frame of reference. And second is the speed of light in vacuum has the same value in any type of frame of reference. ये थे ये मेन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और मेन फाइंडिंग्स क्या थी, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, एक आपने देखा था कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लोवर मीन्स टाइम डायलेशन आपने पढ़ा है.
टाइम डायलेशन कब होगा? डायलेट होना मतलब बढ़ जाना, टाइम बढ़ जाना मतलब स्लो हो जाना। जब स्लो हो जाएगा टाइम तो ज़्यादा टाइम लगेगा किसी मोशन में, किसी भी चीज़ में। सो मूविंग, इफ़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अगर सपोज अर्थ पर आप हैं, यू आर एट रेस्ट एंड अ प्लेन इज मूविंग, तो आप कह सकते हैं प्लेन इज मूविंग, वो प्लेन उसके अंदर जो भी क्लॉक है या जो टाइम है दैट शुड रन स्लो, मीन्स वो टाइम स्लो हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे फॉर ऑल द इवेंट्स, जो भी वहाँ पे होगा अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ स्लो हो जाएगा। बट रिमेंबर द मेन पॉइंट, ये कब होगा? नॉट एवरी टाइम, not for all the speeds. For this to happen, the plane should go at very high speed. वो जो भी मूविंग, हम मूव की बात कर रहे हैं, that frame of reference must have the high velocity near to the speed of light. जो speed of light है उसके नज़दीक, उसके नियर अबाउट जब वैल्यू हम पहुंच जाते हैं as predicted by Einstein, तो ये फिनोमेना आता है इस टाइप का। रिलेटिविटी मीन्स कि आप जब आप उस प्लेन पर हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हैं एंड यू आर टेकिंग द मेजरमेंट, देन देयर इज़ नो टाइम डायलेशन, क्योंकि वो आपके लिए कोई भी रिलेटिविटी वहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसी प्लेन पर हैं, उसी प्लेन पे क्लॉक है। सो यू आर मूविंग मीन्स क्लॉक इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू व्हेन बोथ आर मूविंग। बट व्हेन यू आर टेकिंग मेजरिंग फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ और उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन है, देयर इज़ ए रिलेटिव स्पीड। तो वो जो रिलेटिव स्पीड है वो इतनी हाई है कि आपको लगता है इट सीम्स फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम पर्सन इज टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम अर्थ, कि वहाँ पे जो क्लॉक है वो स्लो टिक करेगी, दैट विल टिक स्लोली, और यहाँ से टाइम बढ़ जाता है। और एक यहाँ पे एक फैक्टर आता है 1/√1 - v²/c², दिस इज समटाइम्स कॉल्ड गामा। और आप बोलेंगे कि टी जो टाइम है वो गामा टाइम्स टी नॉट है, गामा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज वी इज़ ऑलवेज लेस देन सी। तो वी हमेशा सी के कम ही रहेगा, बहुत हाई रहेगा, 0.9 या 0.95, बट सी से कम ही रहेगा। सो 1 माइनस ये करेंगे तो ये हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव प्लस में आएगा, और ये टोटल गामा जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होने से तो आप बोलेंगे कि टी जो है, टी नॉट अगर आपका एब्सोल्यूट टाइम है, प्रॉपर टाइम है, तो प्रॉपर टाइम क्या हो गया? बढ़ गया टी, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अगेन विद द वेरी हाई स्पीड नियर टू सी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर शॉर्टर, मीन्स देयर इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो लेंथ होगी, जो साइज होगा उस ऑब्जेक्ट का विच इज़ मूविंग एट वेरी हाई स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो आपका जो उसकी लेंथ होगी वो L = L0 डिवाइडेड बाई गामा। अगेन गामा इज़ ग्रेटर देन 1, सो L इज़ लेस देन L0। L0 इज़ योर प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ से हमेशा आपका L जो आप मेजर करेंगे वो कम ही आता है, ठीक है। ये भी है। अब ये आपको डेली लाइफ में इसीलिए नोटिसेबल नहीं है ये वाले इफ़ेक्ट, बिकॉज इन योर डेली एवरीडे लाइफ एंड इन योर सराउंडिंग्स नथिंग कैन अचीव द स्पीड ऑफ लाइट, या इसके कहीं आसपास, कहीं बहुत दूर दूर तक भी कोई नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये सब हमें जो हमारी स्पीड है उसमें नोटिस नहीं कर सकते हम इसको। तो ये था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ और बातें भी हैं जो आप लोग देख लेना कि साइमल्टेनिटी जो एक आता है कि इवेंट्स हैं जो वो साइमल्टेनियस नहीं होती, अगेन ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। एक इवेंट, दो इवेंट अगर होती हैं एक साथ पे फॉर एन ऑब्जर्वर एंड फॉर अदर ऑब्जर्वर इट मे बी एट डिफरेंट टाइम, तो साइमल्टेनिटी का भी इसी से आता है। अब इसी से इन सब के आगे क्या हम कंक्लूड कर पाए स्पेशल थ्योरी से कि ये स्पेस और टाइम जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है।
शुड बी रिलेटिव, एवरी टाइम ये रिलेटिव है, नॉट जस्ट स्पेस बट टाइम भी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एक स्पेस टाइम है पूरा का पूरा, या यहाँ से समझ सकते हैं आप न्यूटन के टाइम से बात करते हैं तो स्पेस एंड टाइम आपने आज तक पढ़ा है, एक्स वाई जेड, अगर आपके कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है, वो एक्स वाई जेड आपको बताता है। आप किसी को मेज़र कर सकते हैं, किसी का साइज, या किसी भी सिस्टम प्लेन्स को बता सकते हैं उसमें, 3 डायमेंशनल। यहाँ टाइम एक अलग ही चीज़ था, टाइम को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट इज़ टाइम, इस पे एक अलग से लेक्चर हो सकता है सेपरेट, कि टाइम है क्या, बिकॉज वी कैन ओनली फील इट, ठीक है, ये है क्या। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि द टाइम डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड स्पेस एंड टाइम आर नॉट डिफरेंट बट इट space time is complete means space time is something सेम ही है स्पेस और टाइम, और वो अलग अलग बातें हैं एक ही चीज़ की, मतलब एक है बट उसके 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं स्पेस और टाइम। इसको कैसे समझते हैं अभी धीरे हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व्ड स्पेस कर्व्ड है, ये तो आपको पता है, बिकॉज अर्थ जैसे कि है, initially it was thought that earth is flat but later it was revealed that earth is curved। तो आप देखते हैं कि अर्थ का सरफेस जो है वो कर्व्ड है। इसी तरह से सिमिलर टू दिस आवर स्पेस टाइम इज आल्सो कर्व्ड। स्पेस टाइम क्या है और क्या ग्रेविटी है, चलो लेट अस डिस्कस दिस कि ग्रेविटी क्या है। यहीं से हम आते रहेंगे, अब स्पेस टाइम आने लगा है तो अब हम ग्रेविटी की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो अगर आपने इनिशियली जो बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा, न्यूटन का आपने लॉज पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया कि 2 डिफरेंट मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाता है इस टाइप का। मगर वो अट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं, हाँ ये आइंस्टाइन के रिजल्ट से भी निकल के आता है, मगर कैसे, वो पूरा जो मैकेनिज़्म है वो क्लियर नहीं था न्यूटन का। और टाइम को कैसे इसमें शामिल करें हम, स्पेस अलग है टाइम अलग है न्यूटन के टाइम पे, लेकिन हम यहाँ स्पेस टाइम की बात करेंगे और इसको ग्रेविटी से समझाएंगे कि आखिर ये अलग अलग मास का कैसे फ़र्क पड़ जाता है, कैसे एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस टाइम को कर्व्ड कर देता है, ठीक है। तो उसी को हम ग्रेविटी बोल देंगे। अभी इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं धीरे धीरे, अब हम मूव कर गए हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल तो हमने पढ़ लिया, उसकी मेजर फाइंडिंग्स भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ इज़ द टाइम टू डिस्कस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि ग्रेविटी अराइजेज फ्रॉम डिस्टॉर्शंस ऑफ स्पेस टाइम, ठीक है। स्पेस टाइम समझ लीजिए एक पूरा का पूरा जहाँ भी हम अभी हैं, ठीक है, अभी आप यहाँ पर हैं, कहीं भी अपने रूम पे हैं, कहीं हैं, तो इसको अब थोड़ा बड़े उससे समझिए, पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा ब्रॉड करेंगे एंड लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज कि क्या है ये पूरा यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में आप एक रूम पर हैं, लेकिन ये रूम कहाँ है, रूम किसी सिटी में है, वो पूरा फिर अर्थ है, ठीक है। अर्थ इज़ ऑल्सो लाइक एन स्फीयर जस्ट फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स गैलेक्सी। तो वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास हैवी मासेस हैं, लाइक अर्थ, लाइक स्टार्स, देयर आर मैनी अदर प्लैनेट्स। तो ये सब क्या है, इस तरह से जो सस्पेंडेड है पूरा यूनिवर्स में, इसमें एक स्पेस टाइम को कंसिडर करिए। अब आप इमेजिन करिए, स्पेस टाइम मीन्स सब कुछ जो चल रहा है, ये स्पेस को तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आसपास, बट अब टाइम भी उसमें ऐड कर दीजिए, 4th डायमेंशन। तो स्पेस टाइम जो है एक फैब्रिक टाइप का, उस स्पेस टाइम में अगर डिफरेंट मासेज हैं, जहाँ जहाँ पर हैवी मास लाइक अर्थ, तो वो अर्थ क्या करेगा, उस स्पेस टाइम को कर्व्ड कर देगा, वहाँ पे फ्लैट नहीं रहने देगा। लोकली तो फ्लैट होता है, बट वैसे वो वहाँ पे जहाँ पे कोई हैवी मास आ जाएगा वो उसको कर्व्ड करेगा,
कर्व कर देने से वहाँ पे दूसरा मास उस तरफ आ सकता है। अभी इसको हम थोड़ा और ट्राई करेंगे समझने की। सेकेंड थिंग इज टाइम रन स्लोली इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जो जस्ट लाइक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जैसे हमने देखा टाइम डायलेशन हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ठीक है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से आता था, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेट होता है अगेन। और आपका यहाँ तक कि लाइट को भी आप बैंड कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटी। एंड ब्लैक होल्स कैन एग्जिस्ट इन स्पेस टाइम। द यूनिवर्स मे हैव नो बाउंड्रीज एंड नो सेंटर बट मे स्टिल हैव फाइनाइट वॉल्यूम। रैपिड चेंजेज इन द मोशन ऑफ लार्ज मासेज कैन कॉज ग्रेविटेशनल वेव्स। ये सारी बातें की पॉइंट हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ लेंगे अलग अलग तरीके से। ग्रेविटेशनल वेव्स का तो अलग ही आपका पूरा यूनिट है एक। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं इस वाली पिक्चर में बहुत एनिमेशन है, आप आराम से समझ सकते हैं जो मैं अभी तक बोल रहा था कि ये स्पेस टाइम समझ लीजिए, जो लाइन्स हमने खींची हुई हैं ये स्पेस टाइम का एक फैब्रिक सा है एंड ये अर्थ दिखाया हुआ है। एंड नाउ अर्थ क्या कर रहा है, ड्यू टू इट्स हैवी मास इट कॉजेज अ बेंडिंग, ठीक है, या वॉर्पिंग कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। इसने इसको कर्व कर दिया है, इन लाइन्स को स्पेस टाइम को कर्व कर दिया। ये जो वॉर्पिंग है दिस जनरेट्स द ग्रेविटी, यही ग्रेविटी है, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम इज द ग्रेविटी। अब इसको एनालॉगी से भी समझ सकते हैं हम, आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि कोई एक शीट है, ये रबर शीट भी हो सकती है या बेड शीट भी हो सकती है, कोई भी ऐसा एक फैब्रिक सा ले लिया आपने। अब उसमें क्या करते हैं आप देखो 3 डिफरेंट मासेज आर शोन, 10 kg, 0.1 kg, 1 kg। आप देखेंगे जितना ज़्यादा फ्रीली इसको छोड़ा हुआ है आपने, तो जितना ज़्यादा वेट आप रखेंगे वो उस जगह पे अपने मास की वजह से उसको नीचे को पुश करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। तो सिमिलर टू दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये वाला कि अर्थ किस तरह से इसको बेंड कर रहा है। और इस बेंडिंग की वजह से ही अब कोई दूसरा प्लैनेट अर्थ के अगर नज़दीक आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये स्पेस टाइम नीचे को कर्व्ड हो गया है, इसीलिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ सकता है। और दैट इज़ ग्रेविटी, व्हाट यू नो सिंस दी न्यूटन के टाइम से ही आप ये जानते हैं क्यों हैवी मासेज एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इवन लाइट कैन बी बेंड यूज थ्रू अ हैवी मास। अगर आप देखते हैं ई, इस फिगर में ई है अर्थ, ठीक है, और एक डॉट लाइन जो है वहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, डॉटेड लाइन एक्चुअली। बट होता क्या है, जो एस है वो सोर्स है, सी है एक हैवी मास, मतलब कि कोई भी हो सकता है, वो स्टार भी हो सकता है, ब्लैक होल भी हो सकता है, जो सी है। सो लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम एस टू ई, एस से ई तक आ रही है, सोर्स से अर्थ तक, बट इन बिटवीन देयर इज़ सी। तो अगर सी की वजह से क्या होता है, अगेन आप इमेजिन करिए आपका स्पेस टाइम उस जगह पे अराउंड सी कर्व्ड हो जाएगा, तो लाइट भी उसका जो ओरिजिनल पाथ था डॉटेड लाइन का, इट विल नॉट फॉलो दैट पाथ बट इट विल बैंड। एंड ये जो एक्चुअल पाथ जो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, सॉलिड लाइन दिखाई गई है, वो पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो यही है, ये एक्चुअली होता है, ठीक है। और अर्थ से आपको क्या लगता है, स्टार अपीयर्स टू बी लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ बाय द डॉटेड लाइन। तो ऐसा लगता है कि आपको स्टार वहीं पर है, जबकि स्टार ने उसे बैंड कर लिया, इसलिए वो बैंड हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि the space time of special relativity is one in which the shortest space time path between 2 points is a straight line, ठीक है। जैसे कि in a vacuum for example the path of a ray of light is a straight line, तो shortest path वहाँ आ जाएगा। the presence of mass bends space time, ये मेजर बात है हमारी, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि स्पेस टाइम को बैंड करता है मास। द रिजल्ट इज़ व्हाट वी कॉल ग्रेविटी।
A satellite in orbit follows the curvature of space time. Physics that takes this into account is called general relativity. तो यहीं से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है. यही सारा जब हम इसको पढ़ते हैं और इसके फिर डिफरेंट थिंग्स पढ़ेंगे. According to general relativity, gravity causes a time dilation similar to that caused by motion. जो मैंने अभी बताया आपको. स्पेशल थ्योरी में मोशन की वजह से जो आता है टाइम डायलेशन, ग्रेविटी भी इस तरीके से टाइम डायलेशन भी करती है. ग्रेविटी अफेक्ट्स टाइम बाय स्लोइंग इट डाउन. वही है, स्लो हो जाता है मीन्स टाइम डायलेट हो जाता है. तो ग्रेविटी अफेक्ट्स स्पेस टाइम बाय बैंडिंग इट, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग इट. तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और इसके साथ ही मैं एक ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि मास और ग्रेविटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस. एक बेसिक बात है, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में तो ये इजी रहता है इस टाइप के डिस्कशन, बट फिर भी आप लोगों के अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप थोड़ा सा सोचिएगा. मास एंड वेट क्या है ये. मास अलग है, वेट अलग है, बट क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या सिमिलैरिटी है. वेट कब आ जाएगा. मास ही है सब कुछ, लेकिन वेट कब आप फील करते हैं. वेट तब तक फील नहीं कर सकते until unless there is a surface on which you are standing. कोई भी चीज़ है, आपका वेट है या किसी भी चीज़ का वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है, वो फील कब होगा, वो रियलाइज्ड कब होगा एक्चुअल में, जब उसे कहीं पर रखा जाएगा. क्योंकि अर्थ में तो आप अगर फ्री फॉल को कंसिडर करते हैं, फ्री फॉल, ठीक है, समथिंग इज़ फ्री फॉलिंग जस्ट अंडर द ग्रेविटी, देयर इज़ ओनली वन फोर्स, ग्रेविटी. उस समय ग्रेविटी है. कोई जंप कर जाए अपना एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, या कोई चीज़ को फेंक दो आप ऊपर से, तो वो अभी ग्रेविटी है बस जस्ट. बट आपको क्या, अगर आप उससे जंप किया है तो विल यू फील योर वेट एट दैट टाइम. आपको नहीं होगा, वेटलेसनेस होगा. तो वो जो वेटलेसनेस है वो क्यों है, बिकॉज देयर इज़ नो सरफेस. क्योंकि जब सरफेस होगा तब आपको जो वेट जो फील होता है वो क्यों होता है, एक रिएक्शन जो आता है सरफेस का, जो अपोजिट डायरेक्शन, जितना आपने किया उतना ही वापस आएगा. तो इट डिपेंड्स कि हमारा वेट कहाँ पे कितना होगा. तभी मून पे अलग है, अर्थ पे अलग है, क्योंकि वो सरफेस जहाँ पर हम खड़े हैं वो कितना है. अदरवाइज़ ग्रेविटी आपको पुल करता जाएगा. आप जब तक एक सॉलिड जगह पर नहीं हैं तब तक आप ग्रेविटी के अंडर हैं. हमेशा आप कोई भी चीज़, इट विल टेंड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही जा रहे हैं आप. क्योंकि अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की तरफ ही खींच रही है अर्थ आपको, बिकॉज ऑफ स्पेस टाइम इज़ बैंड. अब जब तो आपको ग्राउंड मिल गया, कहीं पे आप ग्राउंड पर हैं, अर्थ पर सरफेस पे, तो आप रुक गए वहाँ पे. अगर आप वहाँ पर से और कुछ जगह बना लेते हैं तो और अंदर जाती हैं चीज़ें. मीन्स कि हमेशा सरफेस होना चाहिए आपको फील करने के लिए वेट को. ठीक है, तो इसको ग्रेविटी और ये टाइम, ये सारे बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आज का तो ये ओवरव्यू था एक. और अब हम नेक्स्ट टाइम पे आई थिंक विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल वेव्स कि क्या है और हाउ वी कैन डिटेक्ट इट. उसके बाद हमको थोड़ा टेंसर का आइडिया लेना पड़ेगा. देन जो लैंग्वेज है हमारी, जो थ्योरी है आइंस्टाइन की, जो थ्योरी इक्वेशन है, उनको हम टेंसर फॉर्म में ही पढ़ पाएंगे. तो इसके लिए हमको उसका बेसिक नॉलेज भी चाहिए. ठीक है, तो सो फार सो गुड. अभी के लिए इतना ठीक है. एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.